Okay, guys, welcome to my channel again. Actually, today I'm going to. This is the question paper of NEET exam 2025. कहाँ गया? NEET exam 2025 का ये papers है. Today I'm going to answer the organic question. Actually, I will solve it in three parts because the video is going to be very lengthy. So today I plan to solve the organic question only, and not only solve this, but also I will try to explain some facts and some associated logic behind that, and from where you need to study. Okay, the fundamental things also associated with the question paper. So do not wasting time, let's start. First, हम ये देख लेते हैं कि सी क्वेश्चन नंबर 49. So okay, I will come to the question number 49 later because today I am going to explain the question number 49 along with the associated theories and from where you need to study and how to study and how to tackle the question. Once you complete this video, I am damn sure because I have seen many papers of NEET exam, and each and every year they are asking one question from the addition or double bond. HBr addition or double bond, mainly sometimes it is directly Markovnikov, following the Markovnikov rules, and sometimes anti-Markovnikov rules. And today I am going to explain the chemistry behind the Markovnikov rules and the anti-Markovnikov rules. Okay, and once you completed this video, you will be the thing will be very clear to you. I hope so. Okay, and I think later on no question from this topic, double bond addition of HBr or something, halogen or something like that, any kind of double bond addition you will be able to answer. Okay, so let's start without wasting time because I'm going to explain mainly on Markovnikov and anti-Markovnikov rules and the chemistry behind that. So I will answer this question at the end. Before that, I just go through the question which asked from the organic chemistry. Okay. Now see, this is the question, question number 60. This is the question paper of NEET 2025. Actually, I have analyzed this paper and compare with the 2024. This paper was bit tougher, and it is not that easy. That's why maybe the cutoff was bit low in comparison to 2024. So just which one of the following reaction does not give the benzene as the product? देखिए ये जो सवाल है ना, ये आपका सीधा सीधा कुछ तो एग्जांपल ऐसा है एनसीईआरटी से दिया हुआ है, और दोज द स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल बेंगोली मीडियम का एक बुक्स है आपका, वो जो छाया प्रकाशनी करके एक है जहाँ से एकदम उठा के दिया हुआ है. तो कोई भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई बुक्स स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगा आपको, या फिर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शायद ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक चीज़ पता है हमको सोडा लाइम और सोडियम सॉल्ट इसके हिट करोगे तो ये बेंजीन देगा. ओके, एंड दिस ऑल्सो गिव द बेंजीन एंड दिस ऑल्सो गिव द बेंजीन. ओके, रेड हॉट आयरन ट्यूब और रेड हॉट कॉपर ट्यूब, बस यही एक है. एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे हमको पता है कि दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड. इसको अगर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हिट करोगे तो ये क्या बनेगा, फेनॉल बनेगा. नॉट ओनली दैट, हमको ये डाइजोनियम क्लोराइड रिलेटेड बहुत सारे केमिस्ट्री हमको पता है. केमिस्ट्री जैसे कि कुछ चीज़ें मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको. जैसे डाइजोनियम क्लोराइड मान लो, इसमें सैंड माई रिएक्शन करके एक रिएक्शन है आपका सिलेबस में ना, तो वहाँ पे 3-4 एग्जांपल है. एक तो हो गया आपका CuCl HCl, उसमें आपको क्लोरीन बनेगा. एक होगा CuBr HBr, उसमें आपको क्या बनेगा, ब्रोमीन बनेगा. पोटासियम आयोडाइड से हीट करोगे उसमें आपको आयोडाइड बनेगा. आयोडाइड मतलब आयोडोबेंजीन, ठीक है ना. ब्रोमाइड मतलब ब्रोमोबेंजीन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. और एक हो गया HBF4, इसे हीट करोगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें आपको याद करना है. और एक और है CuCN KCN और समटाइम दिया हुआ है ACN, ठीक है ना. इससे हीट करोगे तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, CN. ये आपको मेमोराइज करना है. ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस इज ए वेरी मच फैक्चुअल क्वेश्चन. इसमें ज़्यादा कुछ साइंस है नहीं, तो इतना आपको बस याद करना ही है. तो ये हो गया आपका एलिवेशन, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं भी पता ना, देन ऑल्सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये तो हर एक को पता है. जो बंदा नीट दे रहा है उसको तो पता है ही है. बाकी जो ऐसे सिंपल मतलब
HS बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो उसको पता है ये दिस क्वेश्चन. तो बेस्ड ऑन दिस नॉलेज ओनली यू कैन एलिमिनेट ऑल द अदर थिंग्स एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट होगा ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर. ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर तो हमको पता है कैसे बनता है कि ये डबल बॉन्ड में है ना, ये जैसे 1 इन पेंट 1 इन मतलब 1 इन मतलब ये आपका टर्मिनल डबल बॉन्ड. अब इसका कंडीशन ये हो गया R1 R2, ज़्यादा डीपी में नहीं जा रहा हूँ. इसमें कंडीशन ऐसा है कि दिस नॉट इज इक्वल टू दिस. ओके ना, ये मान लीजिए 1 है ये 2 है तो 1 नॉट इज इक्वल टू 2 ऐसा होना पड़ेगा. ओके, सिस ट्रांस ज्योमेट्री बनने के लिए. तो बस एक बार देख लीजिए, ये पेंट 1 इनका क्या फंडा है, इसमें कुछ नहीं है. ये हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपको 3 कार्बन C3 समथिंग लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, सेम है, तो इसमें आपको सिस ट्रांस बनेगा नहीं. तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. मैं एक बार इसको सीधा सीधे आंसर में जाता हूँ. 2 मिथॉक्सी 2 हेक्सेन, एक ये 2 मिथाइल हेक्सेन 2 इन, इसको एक बार देख लेता हूँ. 2 मिथाइल 1 2 ये हो गया. ये इसमें तो आपका देखिए 2 मिथाइल हेक्स 2 इन साइक्लो नहीं है ना भाई, ये हो गया आपका. अच्छा ठीक है ना, मिथाइल ये बनेगा. ऑप्शन कुछ है कि 1 2 3 को नहीं है ना. एक 2 3 4 5 6 ना, CH3. तो 2 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 2 ये हो गया. लेकिन देखिए यहाँ पे भी ना 2 मिथाइल है तो ये मतलब 1 नॉट इक्वल टू नहीं, 1 इक्वल 2 हो गया. तो ये भी नहीं बनेगा आपका. आप 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन मतलब ये हो गया. अब 1 1 बोल दिया ना, तो मतलब यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा. आप 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बस यही एक बचा है. तो विदाउट नोइंग एनीथिंग आप इसका आंसर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी मैं बता देता हूँ इसको. साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज काफ़ी सारे एग्जाम में ये आता है, स्पेशली नीट में तो आएगा ही. 1 2 डाइमिथाइल ना, ये देखिए ये अगर हो गया ना दोनों ऊपर, मतलब आप मान लीजिए इस कार्बन की रेस्पेक्ट में ना, इस कार्बन की रेस्पेक्ट में आप ए ऊपर है ये नीचे है, तो इस कार्बन की रेस्पेक्ट में ए ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है. तो दोनों ऊपर मतलब सेम साइड में है, तो मतलब ये हो गया आपका सिस. और ऐसे कि एक को फिक्स्ड रखिए, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको अगर चेंज कर दीजिए, ये मिथाइल यहाँ पे हाइड्रोजन, बस ये हो गया आपका टर्म्स. तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस ज्योमेट्री है. और इसका फंडा भाई यही है, मतलब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं. इसमें क्या है ना, आपको सिस ट्रांस में कभी कभार दिक्कत आ सकता है, लेकिन बस इतना जानिए कि ये जो कार्बन, कोई भी एक बेस लाइन ले लीजिए इस कार्बन का, अगर ये एक्सियल है और यहाँ पे इसको इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल के चक्कर में जाओगे तो फिर गलत हो सकता है. बस इतना याद रखना है कि इस कार्बन का ये ऊपर अपवर्ड साइड में और ये हाइड्रोजन जो है ये डाउनवर्ड साइड में. बस इस कार्बन में क्या होगा, ऊपर कौन सा है मिथाइल है और नीचे कौन सा है हाइड्रोजन है. तो ये दोनों ऊपर मतलब आप हो गया, मतलब आप हो गया, मतलब सीज हो गया, सेम साइड में हो गया. ठीक है ना, ऐसे याद करना है. अगर ये एक्सियल में है, ये इक्वेटोरियल में, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसा नहीं होता है. ऐसा अगर करने जाओगे तो फिर तो हो जाएगा दिक्कत है. ठीक है ना, तब गलत हो सकता है. तो इसलिए बेटर ये है ऊपर नीचे ये देखना है. 1 2 1 3 जो भी होगा, 1 2 1 3 1 4 कहीं पे भी हो, बस इस सिस ट्रांस देखने का साइक्लोहेक्सेन का यही फंडा है. ठीक है ना, तो 4 नंबर ऑप्शन ये सही है. आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ये भी सिंपल ही था. बाकी ऑर्गेनिक पोर्शन में मुझे लगा ज़्यादा सिंपल है, और बाकी एनालिटिकल मतलब बाकी सारे सवाल ना इनऑर्गेनिक पोर्शन में मैंने देखा, इवन काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद यू हैव टू फाइंड द आंसर. मतलब ऐसे नहीं, 2024 में जो पेपर था उसमें से अगर आपको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज है ठीक ठाक तो फिर आप वो निकल जाओगे, मतलब इसमें से फुल अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन इस पेपर में मुझे लगा थोड़ा सा डीप नॉलेज की जानकारी होना चाहिए. ठीक है, मुझे लगा ऐसा. और ऐसे जो कि नीट दे रहा है, मतलब प्रिपरेशन ले रहा है अच्छे से, तो उसका तो है ही होगा. ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ. हाँ, एक चीज़ और बोलना है, ये एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और एक कार्बोनेट की स्टेबिलिटी, ये सारे चीज़ें हो गए आपका फंडामेंटल. एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, ये फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. स्पेशली फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you have to have the base very strong.
तो ये आपका जो है फंडामेंटल है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही है। कभी भी मतलब एकदम डीप से पढ़ना है इसको। कभी भी मतलब वाला ऐसे नहीं है कि वो फैक्ट्स आपको मतलब क्या है को एक क्वेश्चन पेपर का MCQ का काफ़ी सारा बुक्स आता होगा मार्केट में, आपको मुझे पता है। जो लोग मतलब ये नीट देते होंगे तो वो काफ़ी सारे MCQ प्रैक्टिस भी करता है, वो भी ठीक है, वो चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन प्लीज़ डोंट फोकस ऑन नॉट ओनली फॉर MCQ। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये थ्योरी जरूरी है। विदाउट द बेस आप वो थ्योरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशल है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा के तिकड़म लगा के आपको सवाल पूछेगा। और आपका जो है सिर्फ अगर MCQ बेस्ड अगर नॉलेज है आपका, तो वो दिक्कत आ सकता है। तो मेरा एडवाइस ये है, आपको पहले फंडामेंटल पूरा क्लियर करना है अच्छे से, देन उसके बाद तो मुझे लगता है ऐसा कि आप गो थ्रू द सिलेबस का हर एक चीज़ें पढ़ो, NCERT पढ़ो और अच्छे से डीप में थोड़ा सा पढ़ो। उसके बाद आपको कोई MCQ प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी चीज़ें वो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नथिंग बट वो मैथ टाइप का है ना। मैथ में जैसा आता है ना, अरिथमेटिक में जैसे आपने समझ लिया उसका मतलब आप कर लोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल है, वो आप पढ़ते पढ़ते वो सारी चीज़ें आ जाएगा आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ये देख लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ है। आप N मिथाइल एनिलीन, इस ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर निकलना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। N मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन कैसा है, ये हो गया हमारा एनिलीन, NHAME, एक हो गया N मिथाइल एनिलीन। दूसरा हो गया बेंजीन एमीन, ओके, एमीन बेंजीन, ठीक है ना। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया एमीन, ठीक है। बेंजीन भाई एनिलीन दे दिया इसने घुमा फिरा के। अच्छा, इथेन एमीन, इथान एमीन, इथान एमीन, इथाइन एमीन, ठीक है। इथाइल एमीन दे देता भाई, CH3 CH2 NH2, और N इथाइल, N इथाइल इथाइन एमीन, ऐसा घुमा घुमा कर दे रहा है। तो N इथाइल इथाइल एमीन भाई, इधर हो गया आपको इथाइल एमीन CH2, ये हो गया आपका NH, इधर फिर से इथाइल ET लिख दे रहा हूँ मैं, N इथाइल इथाइल। अब ये चार सबस्टेट है आपके पास। अब इसको क्या करना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एसिड बेस में ना ऑलवेज आपको मिलेगा, अगर बेस कॉम्पोजिशन में जनरल आपको मिलेगा नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बेस किसको बोलते हैं कि द एवेलेबिलिटी, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, इसका अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोर द लोन पेयर इज अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम, मोर द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इज बेसिक, ठीक है ना। ये एक ही स्टेटमेंट में जो बता रहा हूँ, दैट इज द फंडा। मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, मोर द कंपाउंड विल बी बेसिक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, डिलोकलाइज करेगा किसमें, रेजोनेंस में ना। ये बेंजीनिंग पे बेंजीनिंग के ऊपर से डिलोकलाइज हो जाएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सेम केस हियर ऑल्सो, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ऐसा है कि मिसाइल का जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसमें क्या करेगा, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर का डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीक है। ये रेजोनेंस होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट इसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो बेसिसिटी किसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब आएंगे इस दोनों में, इन दोनों में तो भाई ये तो लोकलाइज है ही ना, ये इसका तो रेजोनेंस वाला कोई फंडा है ही नहीं। ऊपर से क्या होगा, ये इथाइल का होगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक इथाइल का होगा, यहाँ पे 2 इथाइल का होगा। तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। अब चारों का कंपेयर करेंगे, इसमें इन दोनों में क्या है, इन दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट के लिए ये इसका मतलब लोकलाइज नहीं रहेगा लोन पेयर, ये बेंजीन के थ्रू डिलोकलाइज करेगा। लेकिन इन दोनों में क्या है, एकदम पूरा लोकलाइज है, ये लोकलाइज भी है और एक इसको इंटेंसिफाई भी कर रहा है लोन पेयर को। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, डाइथाइल एमीन। आपको डाइथाइल एमीन तो इधर लिखा नहीं है, N इथाइल जो भी है, N इथाइल इथान एमीन, ठीक है ना, ये सबसे बेसिक है। तो ढूंढो उसको, N इथाइल इथाइन एमीन हो गया, उसके बाद हो गया आपका इथेन एमीन, उसके बाद हो गया आपको N मिथाइल एनिलीन, उसके बाद बेंजीन एमीन मतलब एनिलीन, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ये हो गया। तो ये ऐसे तो बहुत
आसान था। लेकिन भाई ये देखिए, ये कर करके मतलब यही है, पेपर सेटर अगर चाहेगा ना कि तुम्हारा थोड़ा सा घुमाएगा वो, तो वो घुमा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि ये है उसके पास ये वेपन कि आपको थोड़ा सा घुमाएगा। देखिए अगर स्ट्रक्चर दे देता ना तो आपको बिना पेन पेपर कुछ ज़रूरत नहीं था, आप देखा और मार दिया, ठीक हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसे भाई ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया पेपर का ऑप्शन, और ऐसे आपको क्या करना, फिर आप पेपर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, देन वो पास सॉल्यूशन जो है आपका दिमाग में आएगा, उससे पहले आएगा नहीं। अब चलो सेम थिंग यार, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये दोनों चीज़ दोनों सेम था, मतलब ये टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हार्डनेस पॉइंट, दोनों कौन सा हार्ड था भाई, दोनों सेम है। फंडा अगर क्लियर है तो दोनों सेम है, लेकिन ये 67 और 70 में अगर कंपेयर करेंगे तो 67 ये ज़्यादा टफ बन गया है। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा सेट ही ऐसा किया, ठीक है ना। बाकी फंडा वाइज अगर फंडामेंटल आपको पता है तो दोनों सेम है, लेकिन ये थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगाएगा और इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, बिकॉज पेपर स्प्लिटर ऐसे सेट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही है, आपको थोड़ा सा वो हिलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक दिया है, यहाँ पे देखिए एसिडिटी, एसिडिटी में तो हमको पता ही है, सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद जैसे जैसे मिथाइल ऐड होते जाएगा उसका एसिडिटी कम होते जाएगा, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद एसिडिक एसिड, उसके बाद ये हो गया आपका डाईमिथाइल वाला, उसके बाद ट्राईमिथाइल। सो ऑप्शन 3 मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हमको पता है कॉन्जुगेट मोड द कॉन्जुगेट, ये क्या हो गया ना, ये एसिड में जैसे ही H+ क्या करेगा, H+ छोड़ देगा। मान लीजिए H+ यहाँ से निकल गया तो क्या बनेगा, जो बनेगा, जो बेस बनेगा ना इसको O-, मतलब A- जो बना ये अब होगा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया ना। आप देखिए ये जितना स्टेबल होगा मोर इसको बोलते हैं एसिड, इसको बोलोगे एसिड, और इसको बोला है CV कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस ना, कोरस्पॉन्डिंग दिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ही है। तो ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड उतना एसिडिक होगा, ठीक है। अभी क्या फंडा क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, अगर हाइड्रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ राइट दिस हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे अगर मिथाइल होगा ना एसिडिक कैसे हो गया, मतलब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। बस सिमिलर से बात वही है, जितना मिथाइल ग्रुप ऐड होता जाएगा उतना इसका क्या करेगा, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है ऑर्गेनिक एसिडों में। अभी उसके बाद सब्सटीट्यूशन मिथाइल सब्सटीट्यूटेड एसिड अगर कंपेयर करेंगे तो दिस आर द करेक्ट सीक्वेंसेस, ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको वो मार्कोरी का रूल, वो मेन आज हमारा फंडा हुई है कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 75 वाला ये पेपर, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, जो लोग पेपर एग्जाम हॉल हो के आए, ठीक है ना, जिसको हुआ नहीं, जो फिर से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं कह सकता हूँ आपको विथ गारंटी कि दिस क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ये पेपर सेट ही ऐसे किया गया कि ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको, सबसे गलत, सबसे इजी क्वेश्चन ये था, लेकिन सबसे गलत होने वाला क्वेश्चन भी यही था। मैक्सिमम लोगों का ये गलत होगा ही होगा। अगर जो लोग पहली बार देख रहे हो, जो एग्ज़ाम हॉल में गया नहीं हो, मैं उसको भी चैलेंज दे रहा हूँ, जस्ट पॉज दिस वीडियो ओवर हियर एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अगर आपको सॉल्यूशन पता नहीं है तो देन आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन मैच विथ माई आंसर, ओके। देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सीधा, मतलब बहुत आसान है। ये क्या मोनोक्लोरेशन करना है हमको, उसके बाद कितना टाइप का हो सकता है भाई, जितना टाइप का हाइड्रोजन होगा ना उतना टाइप का मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन का टाइप कितना होगा, ये देखिए 1 2 3 4, तो 4 टाइप का होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा बात उसके बाद क्या बोला, इंक्लूडिंग द स्टीरियोआइसोमर। अब स्टीरियोआइसोमर में क्या है, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर क्लोरीन डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो यहाँ पे 2 काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, तो 5 हो गया। बस यहाँ पे गलत हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 होगा, क्योंकि जैसे देखिए ये सेंटर जो है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 2। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको बोलेंगे कि ए 4 बॉन्ड है ना, ABC और मान लीजिए C नहीं D करते हैं, E करते हैं, क्योंकि ये कार्बन C से न्यूट्रल D एंड D, ओके। कार्बन को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे कब, जब ये चारों हाथ में 4 अलग अलग एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बनेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। अब देखिए ये इसमें क्या है, इस सेंटर में देखिए एक कार्बन सेंटर जो है, इस कार्बन सेंटर में
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल, और ये दोनों में मिथाइल, मतलब चारों हाथ में चार अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। लेकिन एज सुन एज आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर है इन दोनों में से एक को अगर क्लोरिनेटेड करेंगे, मान लीजिए इसको एक क्लोरीन हटा, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरिनेटेड कर दिया आपने, तो क्या ये तुरंत क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भाई स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएगा। और जैसे बन गया तो इसका फिर दो आइसोमर बन जाएगा ना, एक हो जाएगा ऐसा वाला H2Cl Ame, और एक हो जाएगा इसका मिरर इमेज, तो ये दो बन गया, ठीक है ना। और ये अगर ड्राइंग नहीं करेंगे तो ये अंडरमाइन हो जाएगा एग्जाम हॉल में, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, एक काउंट करेंगे और गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला बनेगा क्या, 6, इसका होगा 6 आइसोमर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्लोरिनेटेड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऐसे बन गया, और होगा यहाँ पे जैसे क्लोरिनेटेड करेंगे तो ओ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा, तो उसका मिरर इमेज एक बनेगा दूसरा, और यहाँ पे जैसे क्लोरिनेट करेंगे तो ये कार्बन जो है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा, तो फिर इसका एक आपका मिरर इमेज एक दूसरा काउंट करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर बनेगा 6, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये गलत होने का चांसेस सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हो गया आपका अमोंग द गिवन कंपाउंड 1 2 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। जी भाई, ये बॉन्ड डिसोसिएशन का मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इसके साथ एसिडिटी का कोई संबंध नहीं है। एग्जाम हॉल में ये आपको लग सकता है कि दिस इज द हाईली एसिडिक, तो अगर एसिडिक हुआ तो भाई ये क्या करेगा, इजीली ये हाइड्रोजन छोड़ देगा। अगर इजीली छोड़ सकता है तो ये इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये डिसोसिएशन एनर्जी और इसका साथ कोई संबंध, एसिडिटी का साथ कोई संबंध नहीं है, ये बात बता रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखना कि बॉन्ड जितना क्या होगा, आप सिंपल से बात है ना, मान लीजिए एक आपका एक फीट का एक मैं प्लास्टिक का स्केल दे रहा हूँ, 1 फीट का आपको बोल रहा हूँ कि 2 एंड में पकड़ के इसको तोड़ो, तो अब जितना आसानी से तोड़ पाएंगे। अगर ये 2 फीट का हो गया, उससे भी ज़्यादा आसानी से तोड़ पाएंगे आप, ठीक है ना। बस इतना ही है, सिंपल सा बात। अगर जैसे ही इस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये इस कैरेक्टर ज़्यादा होगा मतलब ये होगा आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड, और इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जैसे बॉन्ड लेंथ कम होगा मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, और उसको तोड़ने में आपका एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका लगेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड, उसके बाद sp2, उसके बाद होगा sp3, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ढूंढो आप फिर 2 1 3, 1 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या हो, डाज नॉट डी कलराइज ब्रोमीन वाटर। देखिए ये भी बहुत आसान था। इसमें क्या था, हमको पता है कि उतना भी आसान नहीं था, ठीक है ना। ये आसान तो है लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको डिकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को। मतलब क्या, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ना, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में मैं ये सैंपल ले लिया, उसके बाद एक ड्रॉपर से ड्रॉप क्या करते हैं हम, ड्रॉप एक ड्रॉप इसको ब्रोमीन वाटर क्या करें, ऐड करेंगे। अब ब्रोमीन वाटर हो जाए आपको पर्पल कलर। अब जैसे एक ड्रॉप ऐड करेंगे वो पूरा हो जाएगा कलरलेस, मतलब कुछ तो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ना। तो मतलब रिएक्शन होना पड़ेगा, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होना पड़ेगा, तभी जाके ब्रोमीन वाटर क्या होगा, डिकलराइज होगा। अदरवाइज आप पानी लीजिए, पानी में एक ड्रॉप ब्रोमीन डाल दीजिए, पूरा के पूरा पानी कर देगा वो क्या बोलते हैं, तो ब्रोमीन का कलर बस डाइल्यूटेड फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन ब्रोमीन का कलर वो फॉर्म कर देगा। ओके, तो ब्रोमीन वाटर करता क्या है, ब्रोमीन क्या करता है, डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड में क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये होगा डबल बॉन्ड, ये ब्रोमीन कैसे लेगा और इसको निकाल देगा ऐसे, तो फिर भाई ये ऐसे ब्रोमीन आयन बनेगा एक। उसके बाद ये जो ब्रोमीन माइनस छोड़ दिया वो किसी भी एक एंड में ऐड करेगा, और ऐसे ही बन जाएगा डाइब्रोमो कंपाउंड। ये ब्रोमीन, ये हो गया ब्रोमीन, ठीक है ना, ये डाइब्रोमो कंपाउंड बनेगा, तो ये हो जाएगा फिर कलरलेस, ठीक है। तो देखिए आप कहाँ हो, तो फिर यहाँ पे देखिए ये क्या, ये जो है ये डबल बॉन्ड, ये आसानी से क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड होगा, उसको डिकलराइज करेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तो आपको हुई वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज, मतलब और भी है जो डिकलराइज करता है। अब थिंग इज दैट यहाँ पे अगर सिर्फ बेंजीन दे देता, ओनली बेंजीन, भाई डिकलराइज नहीं करता, क्योंकि ओनली बेंजीन को ब्रोमिनेशन करने के लिए Br2 और एक मेटल देना पड़ता है, ठीक है ना। मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मेटल और Br की वजह से ये रिएक्ट करता है। ऐसे फ्री ब्रोमीन वाटर ऐड करने से बेंजीन रिएक्ट नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पे इसका अंदर जो डबल बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस है तो ये स्टेबल है, ये आसानी से ये ब्रोमीन को नहीं पकड़ेगा, डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा नहीं, क्योंकि ये रिंग के अंदर मतलब रेजोनेटेड है तो फिर नहीं करेगा। सिंपल ये फ्री डबल बॉन्ड जैसा बिहेव करेगा नहीं वो, ठीक है ना, तो ब्रोमिनेशन होगा नहीं। उसके लिए एक आपको मेटल देना पड़ेगा। लेकिन क्या करोगे, जैसे ही इसका रिंग का डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको जैसे क्या करोगे ना, उसको डेंसिटी जैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये उतना एक्टिव नहीं है। तो देखिए दो पार्ट में डिपेंड करता है रिएक्शन, एक तो होगा इसका रिएक्टिविटी और एक होगा जो इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड हो रहा है उसका रिएक्टिविटी। ये दोनों रिएक्टिविटी से मान लीजिए इसका रिएक्टिविटी, ये सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको मैंने एक्टिव कर दिया तो फिर इसका जितना रिएक्टिविटी है ना उसमें भी रिएक्शन हो सकता है। या फिर ऐसा हुआ कि इसको एक्टिव नहीं कर पाया लेकिन इसका रिएक्टिविटी में बढ़ा दिया, उस केस में भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे सिंपल सा बेंजीन वाटर, इसी केस में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन, ये इसमें ब्रोमीन ऐड होने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना रिंग का, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन को पकड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा। एक स्टेप हो गया तो फिर इसमें क्या हो जाएगा ना, Br देखिए प्लस हो गया। उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रेजोनेंस था, जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, फिर से रेजोनेंस मतलब फिर से ये एरोमेटिक रिंग पे फिर से वो बैक कर सकता है। तो ये जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप जो हो गया, फर्स्ट स्टेप वाला, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको एरोमेटिसिटी खोना पड़ेगा, उसके बाद फिर से बैक है। ये जो ये इतना भी रिएक्टिव नहीं है कि ये एरोमेटिसिटी खो के इसको इससे साथ रिएक्ट करे, भाई इसका एक्टिविटी उतना तगड़ा है नहीं। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कर क्या रहा है, इसका जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसको ब्रोमीन को पकड़ता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसमें करना है आपको, कॉलेज नॉट नेसेसरी कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे कैसे, अगर नहीं है तो नहीं है, वो है गरीब, क्या करेगा वो। तो फिर इसमें रिएक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि मान लीजिए ये बेंजीन रिंग हो गया, आप ये ब्रोमीन जो है ना, ये तो है न्यूट्रल अभी, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है। अभी जैसे इसके साथ आयरन दे देंगे तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड करके ना इसका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव इसको इंड्यूस करेगा, ठीक है ना, डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस करेगा। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव एंड है, उसके बाद जैसे पॉजिटिव बन गया, ये तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब वो तो नेगेटिव क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा, उसके बाद इसको पकड़ लेगा। जैसे ये पॉजिटिव इंड्यूस हो गया उसके बाद ये पकड़ लेगा, उसके बाद ये रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये वाला इंडक्शन फैक्टर नहीं है, ये भाई रहेगा न्यूट्रल, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको जो सबस्ट्रेट है इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर एक्टिवेटेड कोई चीज़ें हैं जिसको इसको रिंग डेंसिटी बढ़ा रहा है, तब जाके वो क्या करेगा, वो रिएक्शन कर पाएगा, वो ओनली फ्री ब्रोमीन के साथ, ठीक है। वो कैसे, जैसे मान लीजिए इसके साथ एक ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिव कोई ग्रुप है, जैसे वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर देके इसको रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब इसका पहले से फ्री बेंजीन में जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, अभी जैसे ही वो ही ऐड कर देंगे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ जाएगा उसके बाद उतना पोटेंशियल आ जाएगा कि वो फ्री ब्रोमीन के साथ वो अटैच होकर ब्रोमीन इधर से ब्रोमाइड निकाल के वो ब्रोमिनेशन कर सकता है। सेम केस हियर फॉर एनिलीन ऑल्सो। एनिलीन के पास क्या है, वो देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो सकता है बेंजीन के ऊपर। अब इस केस में भी क्या होगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, ब्रोमीन को पकड़ सकता है। तो ये दोनों केस में आपको रिएक्शन होगा, लेकिन फ्री बेंजीन में रिएक्शन होगा नहीं। फ्री बेंजीन में रिएक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन पार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और वो एक्टिवेट होगा कैसे, वो होगा आपका मेटल आयन ऐड करने के। देखिएगा वो आयरन Br2 और कुछ ऐसा देखे कर रहा है, और ब्रोमीन एसिडिक एसिड समटाइम वो ब्रोमीन एसिडिक एसिड आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, डबल बॉन्ड को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर ये देखिए ये हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये भाई भी एक्टिवेटेड हो जाएगा, और इसका तो डबल बॉन्ड है ही, ये डबल बॉन्ड रिएक्शन करेगा। तो इन तीनों में क्या करेगा, ब्रोमीन एडिशन होगा, ब्रोमीन वाटर से ये रिएक्शन करेगा। लेकिन इस भाई के पास कुछ है ही नहीं, ना डबल बॉन्ड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। सो दिस इज द ओनली कंपाउंड इन कंपेरिजन ऑफ ऑल दिस फोर होगा व्हिच डज नॉट फॉलो द कंपाउंड डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन, ठीक है ना। ये होगा एक आसान सा सवाल। और देखिए ये भी एक बहुत सिंपल सा है,
सिंपल से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में या फिर कोई एमसीक्यू पेपर में या कहीं पे कहीं क्या होगा, जैसे CH3 MgBr एक्सेस देंगे गिगनर रिएजेंट, सबसे पहले करेगा यहाँ पे ऐड। देखिए CH3 MgBr का ना ये इसका मेन फंडा है, ये बहुत हाईली बेसिक है। CH3 माइनस हाईली बेसिक है, और मैं इससे पहले भी कुछ वीडियो में बताया हूँ कि बेस का मेन जो मतलब रिक्वायरमेंट होता है वो एसिडिक प्रोटोन। वो अगर एसिडिक प्रोटोन मिला कहीं पे भी मिला, वो भाई कोई न्यूक्लियो एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं करेगा। प्रोटोन पकड़ेगा और बनेगा CH4 और बैठ जाएगा चुपचाप। नॉट ओनली दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर दिस सबस्ट्रेट दिस रिएजेंट, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी बेस। कहीं पे भी अगर एसिडिक प्रोटोन मिल गया, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और डबल बॉन्ड में एडिशन कुछ नहीं होगा। एसिडिक प्रोटोन मिला तो साइड कर लेगा एसिडिक प्रोटोन लेके, ठीक है। इसीलिए जैसे हमने इस टाइप का पर्टिकुलर रिएक्शन में ये जो CH3 MgBr हाईली ड्राई, ये ड्राई सॉल्वेंट, प्योर ड्राई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को पूरा प्योर ड्राई करना पड़ेगा तभी जाके ये रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए CH3 माइनस, उसको करेगा क्या, कार्बोनिल बनेगा, हमारा कार्बोनिल पे फिर बनेगा ये pH, इसको मैं pH लिख रहा हूँ लिखने में सुविधा होगा इसलिए। तो CO MgBr जो ये पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ जुड़ गया, और ये हो गया आपका मिथाइल, और ये है आपका साइनाइड को मैं थोड़ा सा खोल के लिख रहा हूँ ऐसे। नेक्स्ट एक्सेस है, देखिएगा CH3 माइनस ये मानेगा इधर, फिर उठेगा ऐसे, तो आप क्या कैसे बनेगा, तो PHC ये आपका हो गया OMgBr, नीचे आपका मिथाइल तो है, और बाकी ये पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये देखिए डबल बॉन्ड N माइनस मतलब MgBr इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये होगा आपको CH3। उसके बाद ऑलरेडी नाइट्रोजन माइनस है, MgBr प्लस है, तो नेक्स्ट जो CH3 है वो तो इधर मान नहीं सकते ना, अटैक नहीं कर सकते। तो इसके बाद 2 नंबर पर आप क्या डाल रहे हो, H3 प्लस। इसके बाद अगर H3 प्लस डालोगे तो ये जो MgBr है वो H होगा, ये NH होगा, NH मतलब इमीन होगा, मतलब आपको जो बनेगा ऐसा COH Me डबल बॉन्ड NH CH3, ठीक है ना। ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ना, ये इमीन हाईली डिस्टेबलाइज्ड चीज़ें है, ये स्टेबल है ही नहीं। तो इन प्रेजेंस ऑफ H3 प्लस ये क्या करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस हुआ मतलब इमीन की जगह अमोनिया गैस निकल जाएगा और ये बनेगा भाई CO। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। ये 2 नंबर जो है ऑप्शन ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आसान से चीज़ें हैं। इसके बाद भाई फिर से अगर मान लीजिए 3 नंबर में दिया हुआ फिर से CH3 MgBr, तो उस केस में क्या होगा, वो भी एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए OH एसिडिक प्रोटोन है। पहला वाला जो 1 मोल अगर ऐड करेंगे तो ये H प्लस लेके यहाँ पे MgBr बन के ये रह जाएगा। फिर से एक्सेस ऐड करेंगे तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में अटैक यहाँ पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद बनेगा आपका ये वाला कॉम्पाउंड, दिस वन मतलब C वाला कॉम्पाउंड, ठीक है। अगर 3 नंबर पे CH3 MgBr फिर से दिया हुआ है तो अदरवाइज यहीं पे मामला रुक जाएगा, ठीक है। ये भी आसान सा ही था, कुछ खास है नहीं इसमें, ओके। देखा ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, इसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे वो वाला पोर्शन डिस्कस करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम खींच जाएगा। और ऐसे भी जो छोटा मोटा चीज़ें जो आ रहा है सामने वो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें ये देखिए ये भी फैक्चुअल है, ये देख लीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। NCERT में मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें, ये भी NCERT में मिल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ए ओइकर ऑक्सीडेशन पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है। ए विल्किंसन कैटालिसिस मतलब ये वाला ठीक है। जिग्नल नाटा मतलब ये वाला ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला भी ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया आपका काम तमाम। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। मैं जा ही नहीं रहा उसमें। अब देखिए ये वाला, इस केस में देखिए, इस केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चीज़ है कि अगर ये इससे सबस्ट्रेट से ज़्यादा कार्बन कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में। तो जैसे प्रोडक्ट बनेगा, अगर सीधा ये बन गया तो ये फिर से अटैक कर जाएगा ना, ठीक है ना। ये फिर से अटैक कर जाएगा, ये करके फिर कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ बनेगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन इसको बोलते हैं डाइबाल H, DIBAL, डाइबाल H बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका काम ही है बस, ये रीजन स्पेसिफिकली यही काम करता है। क्या करता है ना, एस्टर से यहाँ पे जाकर रोक देता है रिएक्शन। एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है आपको, तो बस आपको एक ही रिएजेंट इसी को यूज करना है। बाकी ये डालोगे, जैसे 1 नंबर वाला डालोगे तो आपको सीधा इसको भी रिड्यूस करके PHCH2OH ये बना देगा। इसको डालोगे ये भाई रिएक्शन करेगा ही नहीं। सोडियम बोरोहाइड्रेट भाई ये एस्टर में ऐसे रिएक्शन करता नहीं है, अगर करता भी है तो वो स्लो है,
ठीक है ना, ये करेगा नहीं रिएक्शन। ये इसको रिएक्ट करता है, इसको रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये करता नहीं है, और इसको करता भी है तो एक्सट्रीम कंडीशन में, तो उस केस में आपको बना देगा वही अल्कोहल ही बना देगा। हाइड्रोजन पैलेडियम बेस पर ये तो भाई पूरा रिड्यूस करके वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना। तो ये बस इतना याद कर लीजिएगा। अरे ये रिएजेंट देता है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये देता ही है एग्जाम पे, और इसको इंटरमीडिएट स्टेट पे रुक जाता है। ये है ऑक्सीडाइज पार्ट, इसको रिड्यूस करोगे तो ये बनेगा, इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो बनेगा बेंजल अल्कोहल PaCH2OH, ठीक है ना। PaCH2OH को फिर से कंट्रोल रिएक्शन करोगे तो वही PCC वाला रिएजेंट, वो भी मतलब आपको याद करना है, PCC प्यूरिडीन, वो उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इसमें रुकेगा। इसको अगर K2CH2O7 और C8 और KMnO4 ऐसे ऑक्सीडाइज करोगे तो सीधा आपका एसिड बनेगा, ठीक है। तो यही है, दो चीज़ें हैं जो याद करना। एक तो अल्कोहल से एल्डेहाइड में रुकना है तो आपको PCC यूज करना है, और ये एस्टर से एल्डेहाइड पे रुकना है तो डाइवल H यूज करना है। ये दो रिएजेंट आपको याद करके रखना है, ये देता है एग्जाम में, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें दिया है दिस अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन दिस। ये तो भाई होगा ही, क्योंकि ये भाई जो आयोडीन जो है इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ये वो सिस्टम से बहुत जल्दी लिव कर जाता है देन इन कंपेरिजन देन Cl, तो ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर क्या बोला, आयोडीन इज बेटर लिविंग, तो हो गया, दोनों सही है। और ऑप्शन R इज मतलब क्या ही बोलते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया कम का, तो ठीक है। अब देखिए ये दे दिया आपका प्रैक्टिकल से, क्लास 12 में प्रैक्टिकल से स्कूल आपको जाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ नीट से मतलब घर से बैठ के ट्यूशन लगाने से काम नहीं चलेगा। स्कूल में जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो अभी जाके क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, या फिर NCERT का तो एक पार्ट है, मैं देखा आजकल किताब भी निकाल दिया है कि प्रैक्टिकल का, तो वहाँ से भी दिया हुआ है। इसमें असाइन टेस्ट में ये रिएक्शन तीनों रिएक्शन होता है, बस ये नहीं होता। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा सा टफ बोलूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन हमेशा छूट जाता है। हम थ्योरी में इतना ध्यान देते हैं ना, प्रैक्टिकल पोर्शन छूट जाता है, तो ये सही नहीं था। ये आंसर नंबर 4 ये मतलब राइट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलो मैं अब हो गया होगा शायद, अब मैं जाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ से मैं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, जिसके लिए ये वीडियो मेनली बनाना चाहता हूँ। ओके चलिए, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सब्स्ट्रेट दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट, उसके बाद पी प्रोडक्ट, उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत टफ इसलिए है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 3 4 इसके बाद और भी रिएजेंट दे सकता था वो, और भी रिएजेंट दे के और भी 4 नंबर क्वेश्चन पे भी एक रिएजेंट, मान लीजिए NaNO2HCl8 ये भी दे सकता था, उस केस में भी और एक प्रोडक्ट बनता। इसमें क्या है ना, 4 5 रिएजेंट दे के एक प्रोडक्ट बना सकता है। इस केस में चारों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको अब रिएजेंट आपको जानकारी में है नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट आपको मेमोराइज करना है और सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ना है। ये जो है रिएक्शन, ये देखिए ये HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस डेडली कॉम्बिनेशन इज फॉर एंटी मार्कोनिकॉफ, एक रूल्स है उसमें। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल्स, क्या है कि मान लीजिए HBr है ना, HBr में ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ये होगा नेगेटिव पोर्शन। तो ये नेगेटिव वाला एलिमेंट जो है ये कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड जहाँ पे है, जो ये 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव पोर्शन मतलब ये Br वाला पार्ट ऐड होगा। और हाइड्रोजन कहाँ पे होगा ऐड, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। अरे यहाँ पे तो भाई देख लो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और नेगेटिव वाला पोर्शन मतलब यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे कब होगा, जब मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका Br, ठीक है ना। जैसे आपने उसमें बेंजल पैरोक्साइड, जैसे पैरोक्साइड दे देंगे तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन चला जाएगा आपको ईथर और हाइड्रोजन चला जाएगा ईथर। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बस इतना तो याद कर ही लिया, तो इसमें से हमारा काम बन जाएगा। एक्चुअली काम तो यहाँ पे ही बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बेंजोइल पैरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया आपका, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, मतलब हमारा
ए वाला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ब्रोमीन, इसके बाद ब्रोमीन मतलब के जैसे ऐड करेंगे ब्रोमीन निकल जाएगा, साइनाइड SN2 रिएक्शन होगा, साइनाइड निकल गया, तो मतलब यहाँ पे साइनाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ये NaHG इथेनॉल दे देंगे तो साइनाइड को रिडक्शन करके क्या बनाएगा ना, इसको बनाएगा आपका CH2NH2। आपस मैच करो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे CH2NH2, कौन सा प्रोडक्ट में है, यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे काम हमारा बन जा रहा है मार्कोनी के रूल्स एंड एंटी मार्कोनी। लेकिन मुझे जो है कि आज इसको और डेप्थ में सीखना है, सो दैट कि जो भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से इन फ्यूचर एग्जाम पे, क्योंकि देखिए भाई दीजा ये जो पैटर्न है, मैं जो पेपर देखा मैंने आपका 2025 का, ये थोड़ा सा आपको ओनली 12th स्टैंडर्ड का नॉलेज में होगा नहीं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे नॉलेज आपको चाहिए। तो बस वही कोशिश करूँगा कि कम से कम इस लेक्चर के बाद मार्कोनी का रूल्स एंड एंटी मार्कोनी के रूल से कोई डाउट आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। तो देख लेता हूँ, उसके लिए मैंने क्या क्या कुछ एक बुक से मैंने स्कैन कर लिया, सो दैट कि इस सीक्वेंस में ना ये ना हो जाए, अदरवाइज क्या होगा मैं छूट जाएगा कुछ चीज़ें। चलो पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए डबल बॉन्ड में जैसे ही HBr एडिशन में बोल देता हूँ, HX एडिशन के HBr एडिशन, दो प्रोसेस में होता है। एक प्रोसेस ऐसा है कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और एक प्रोसेस ऐसा है पहले रेडिकली ऐड होगा, ठीक है ना, फिर रेडिकल बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो दो प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो पहले मार्कोनी को वाला देख लेता हूँ, जहाँ पे क्या होगा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। उसके इसका फंडा क्या है ये देख लेता हूँ। मान लीजिए ये हो गया आपका HBr, अब ये होगा डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में ऑलवेज भाई ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये H+ को पकड़ेगा, जैसे ही पकड़ेगा देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर ये ऐसा उठ के H+ पकड़ेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन सकता है, या फिर ऐसा पकड़ सकता है कि इधर से पकड़ेगा ऐसा H+ तो फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बन सकता है। अब यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे जो ड्राइंग है, इस केस में तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बने, यहाँ पे कार्बोकैटायन बने, दोनों में केस क्या है सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पे केस सेम नहीं है, जहाँ पे फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे देखेंगे। तो अभी तो आएगा ना जब एसिमेट्रिक डबल बॉन्ड होगा, तो अभी तो आएगा ना भाई वो मार्कोनी को एंटी मार्कोनी। जैसे सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है तो क्या ही फर्क पड़ता है कहाँ पे नेगेटिव पोर्शन ऐड हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों केस में प्रोडक्ट तो सेम होगा। तो मान लीजिए पहले H+ को पकड़ेगा, मतलब एक कार्बन में H+ लग गया, उसका मतलब अलग नेक्स्ट जो कार्बन है वहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये हाइड्रोजन कहाँ से लिया, जो HBr व HX से लिया ना, तो वहाँ से क्या निकल गया X-। अभी X- क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों तो ऐसा खाली मूव करेगा नहीं, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इस पॉजिटिव चार्ज में अटैक करेगा और बनेगा आपका ए वाला प्रोडक्ट। क्लियर, दिस इज द मेन फंडा। आप देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ना फर्स्ट स्टेप इज द रिडायमिन स्टेप, क्योंकि ये दोनों 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये हो गया आपका स्लो स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। तो जो स्लो स्टेप है ये है रिडायमिनिंग स्टेप, ठीक है ना। अब रिडायमिनिंग स्टेप में क्या बन रहा है आपका कार्बोकैटायन बन रहा है। उसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट होगा। आप देखेंगे कौन सा फैक्टर कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकता है। आप देखिए ये आप एक दे दिया 2 मिथाइल प्रोपीन, यहाँ पे तो दिखाया जो सिमेट्रिक वाला, यहाँ पे जैसे 2 मिथाइल प्रोपीन दिया, आप दिस डबल बॉन्ड इज नो लॉन्गर सिमेट्रिक। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। एक तो मान लीजिए ऐसा CH2 था ना, आप एक बार अगर यहाँ पे प्रोटॉन ले लिया इस साइड में, तो मैं बस ऐसे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे प्रोटॉन ले लिया H+, तो फिर यहाँ पे कार्बन बनेगा। और एक अगर ऐसे जिस कार्बन से अगर लेगा H+, तो फिर उस केस में आपको CH2+ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए ये 2 केस हो सकता है। आप मुझे सोच के बताओ, पॉज करो, सोच के बताओ कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जाहिर सी बात यह है कि ए वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये भाई है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। हमको ये पता है, ठीक है ना, कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बस डिग्री ऑफ इसमें कार्बोकैटायन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, क्योंकि भाई सिंपल से बात है, नॉट ओनली डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसका इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज 6 प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन का क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन पे,
एज वेल एज यहाँ पे एक मिसाइल बन रहा है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट देगा। तो तीनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट एंड 9 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट के लिए ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटन है स्टेबिलिटी इसको मिल रहा है। लेकिन 1 डिग्री में देखिए एक ही मतलब इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है ओनली फॉर दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से है, ठीक है ना। और इसको देखिए अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक ही अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पे 9 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। सो क्या करेंगे, इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो वो 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। अगर वो स्टेबल है तो भाई वो बनेगा क्या, 3 डिग्री बनेगा ना, 1 डिग्री तो बनेगा ही नहीं। अगर 3 डिग्री बना तो फिर अगर 3 डिग्री बन गया, मान लीजिए ये बन गया, फिर तो जो H+ लिया था फिर उसके पास बचा क्या है, Br-। अब Br- के पास कोई ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन नहीं है विदाउट अटैकिंग दिस साइड। अब वो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है, ये सा फिर यही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटन वही स्टेबल है। दिस इज द फंडा, इसी को बोलता है मार्कोनी रूल, और कुछ नहीं। फंडा सेम है। फंडा क्या है ना, फर्स्ट स्टेप का जो कार्बोकेटन जहाँ पे स्टेबल होगा वही वाला कार्बोकेटन बनेगा, और वो अगर बन गया तो फिर दूसरा स्टेप में तो इसका कुछ मतलब ऑप्शन है ही नहीं, वो तो सीधा कार्बोकेटन पे अटैक करेगा, काम खत्म। ठीक है। तो ये देखिए 99% प्रोडक्ट ये हो गया आपका, 1% आधा % बनेगा, कुछ बनेगा। अच्छा, आप फंडा ऐसा है चलो ये हो गया आपका। देखिए YZ दे दिया, जो अनसिमेट्रिकल चीज़ें हैं, नॉट ओनली H+ एंड Br- भाई, ये कोई भी अनसिमेट्रिकल चीज़ें जो एक डाइपोल हो जाएगा, डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ACLH। ओके चलो एक दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वहाँ पे स्पेस मिलेगा मुझे। चलो यहीं पे कर देते, मान लो ए वाला ना, इसमें HBr नहीं है, ये जो HBr है ना, उड़ाओ इसको अगर HCl होता तो सेम प्रोडक्ट होता ना, HCl होता तो क्या होता, तो भाई यहाँ पे Cl हो जाता, ठीक है ना। अगर HCl ना होके अगर मान लो OHCl होता, अब क्या करते, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि मार्कोनी के रूल में वो बताया कि H+ और Cl नेगेटिव, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव बताया, ऐसा H+ बताया नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो डबल बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या करेगा, आपको इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पहले फाइंड आउट करना है कि OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देन O का ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा है, देन Cl। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा-, ये हो जाएगा डेल्टा+। इस केस में क्या करेगा भाई, पहले Cl को पकड़ेगा, Cl को पकड़ेगा और OH- निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर Cl को अगर पकड़ा तो फिर क्या होगा, CH2Cl यहाँ पे, और ये बनेगा आपको कार्बोकेटन। उसके बाद क्या करेगा, ये OH- बना, जो ये अटैक करेगा, इसके पास कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, वहीं पे अटैक करना ही करना है उसको, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन था तो यहाँ पे बनेगा आपको, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा OH, और ये एक Cl, क्या पूरा प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा आपको OH, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब HCl या फिर HBr था, उस केस में Br या फिर Cl वो नेगेटिवली इंड्यूस था इन कॉम्पेरिजन H+, ठीक है ना केस। लेकिन वही Cl इस पर्टिकुलर कंपाउंड में Cl- पॉजिटिवली इंड्यूस एंड OH- डेल्टा नेगेटिव, क्लियर। तो आपको पोलरिटी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है ClOH, इसलिए मुझे याद आ गया। सिमिलरली देखिए ICl में केस भी वैसा ही होगा, Cl- का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इंडक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, I डेल्टा+ और Cl होगा डेल्टा-। तो फिर क्या होगा, आयोडीन को पहले पकड़ेगा, और पहले पकड़ा मतलब इधर आयोडीन ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटन, क्योंकि ये कार्बोकेटन जो बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है, ठीक है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटन बन रहा है। अब उस कार्बोकेटन में Cl यहाँ पे ऐड करेगा, तो इस कार्बन में Cl जाएगा और यहाँ पे आयोडीन जाएगा, उल्टा कर दिया मतलब फिर वो हो जाएगा गलत आपका, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, गलत चीज़ें याद नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ जाएगा यार। ये देखिए वो जो मैं बताया अभी, ये करके दिखा रहा है, H+ पहले ऐड करेगा, 2 जगह में इसका पॉसिबिलिटी है, एक 1 अटैक और 2 अटैक। 1 में 1 मतलब एक नंबरिंग क्या हुआ, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं मोबाइल पे आपको, अगर मोबाइल पे नहीं दिख रहा है थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मार्किंग किया हुआ है, सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड ना। अगर 1 नंबर पे अटैक किया मतलब ये ऐसे उठा के इसको पकड़ा, ये भाई को पकड़ा 1 नंबर के थ्रू, मतलब यहाँ पे H लग गया, मतलब ये 2 नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अटैक मतलब 2 पे पॉजिटिव, अगर 2 अटैक मतलब
2 नंबर से हाइड्रोजन पकड़ेगा तो फिर 1 नंबर पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी बस सिंपल से बात मैंने पहले ही बताया कि डिग्री ऑफ कार्बोकेटन देख लीजिएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटन तीनों मिसाइल का इंडक्टिव इफेक्ट के लिए स्टेबलाइज हो रहा है। एज वेल एज 9 हाइपर कॉन्जुगेशन 9 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सो इसको और भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो भाई यही बनेगा ना, इसके पास 2 ऑप्शन है तो ये सबसे ज़्यादा बनेगा। ये बना तो फिर नेक्स्ट स्टेप का तो बस यही तय है, इसके पास ब्रोमीन के पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं अदर देन टू अटैक इन दैट पर्टिकुलर सेंटर, तो काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है ना, तो फिर देखिए ये है एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डीप हो जा रहा है, इसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि नीट वाला पोर्शन है नहीं, क्योंकि मैंने जिस किताब से उठाया वो है ग्रेजुएशन लेवल का किताब, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये आपका HS में भी है, नीट में भी है, IIT JEE में भी है, लेकिन ये डायग्राम फाइग्राम इतनी डिटेल में आएगा नहीं, तो इसको मैं स्किप कर जा रहा हूँ। कभी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं देखूँगा बाद में। देखिए अब नेक्स्ट जो है इन प्रेजेंस ऑफ पार ऑक्साइड। ये पार ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं बेंजोइल पार ऑक्साइड। अब बेंजोइल पार ऑक्साइड में क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट ना, यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए ना कम से कम 60 डिग्री एंड अबव आपको हीट करना है, कि 60 डिग्री एंड अबव में आपका ये वाला जो बेंजीन का बॉन्ड है पार ऑक्साइड बॉन्ड, ये पार ऑक्साइड बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। मतलब ए बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपना लेके बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने के बाद ए वाला रेडिकल बनेगा यहाँ पे भी, फिर ये रेडिकल ना, फिर रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल, ये क्या करेगा, फिर से ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद जो बनेगा फाइनल रेडिकल वो है PH डॉट। ये वाला ये भाई करेगा रिएक्ट। ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये सबसे पहले जो HBr है, ये PH डॉट क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा इधर से, बोलो भाई तू छोड़ Br को, मेरे साथ आ जा। फिर बनेगा PHH, PHH मतलब बेंजीन बन गया। उसके बाद क्या करेगा, फिर इधर से तो सॉरी ये इसको बोलते हैं फिश हुक एरो, मतलब एरो। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे एरो देंगे, उसका मतलब बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों पर्टिकुलर एक सेंटर में आ गया। अगर एरो आप ऐसे देंगे, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो, मतलब एक साइड, 2 साइड नहीं है लेकिन एक साइड का एरो का ये 2 डांडी में से एक डांडी गायब, मतलब इसको बोलेंगे फिश हुक एरो। इसका मतलब ये है कि एक बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से इसका हिस्सा ये लेके भाग गया, इसका हिस्सा ये लेके भाग गया। ठीक है ना, अगर एरो हम ऐसे देंगे, ऐसे वाला एरो दे दिया, उसका मतलब ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भागा और हाइड्रोजन को प्लस करके छोड़ दिया, उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया इसे। ठीक है ना, ये फंडा है। तो हमको फाइनल क्या बना, PHH मतलब बेंजीन बना और Br डॉट बना। ये Br डॉट अब क्या करेगा, ये तो ऐसा घूमेगा नहीं ना, इसके पास जो है भाई, इसके पास है हमारा ए वाला डबल बॉन्ड, मतलब जो कि जिसमें हमने HBr एडिशन किया। तो उसका मतलब क्या हुआ, इस सबस्टेट में क्या क्या दिया हमने, HBr तो दिया है। देखिए HBr तो इधर भी दिया हुआ था ना, ये देखिए कहाँ गया ये वाला, कहाँ गया, अरे हो जाओ। ये देखिए HBr इधर भी दिया हुआ था ना। अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्या कर दिया, पार ऑक्साइड ऐड कर दिया। अब पार ऑक्साइड क्या क्या, पार ऑक्साइड पहले 60 डिग्री पे, 60 और 80 डिग्री पे ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद PH डॉट जनरेट किया, या फिर डाइटर्सरब्यूटाइल पार ऑक्साइड डालोगे तो ये भी मिसाइल रेडिकल बनाएंगे इसमें से। ठीक है ना, वहाँ पे PH डॉट बना रहा था, यहाँ से मिसाइल डॉट बनाएगा। अब ये क्या करेगा, ये HBr से H को निकाल लेगा, H डॉट को निकाल लेगा और Br डॉट खुला छोड़ देगा। अब ये Br डॉट जो है ये करेगा रिएक्शन फास्ट। ठीक है ना, अब Br डॉट क्या करेगा, इधर ऐड हुआ, मतलब इसका भी 1 2 3 मार्किंग कर देता हूँ मैं। चलो ऐसे ही कर देता हूँ ना, इसको लिख के CH2 CH3 CH3, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर कर देता हूँ। 1 2 3 मान लो मार्किंग कर दिया। अब ये Br डॉट अगर 1 नंबर पे लगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल का 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक फिश हुक एरो इधर गया और एक आया आपका CH2 डॉट के CH के ऊपर। उसके बाद क्या हो गया, ये एक डॉट बन गया, ये एक डॉट बन गया। अभी Br डॉट के पास 2 ऑप्शन, ये इधर भी बॉन्ड कर सकता है, ये भाई क्या कर सकता है, इधर भी बॉन्ड कर सकता है। ठीक है ना, अब मान लीजिए 2 अलग अलग ऑप्शन हैं, तो 2 ऑप्शन कैसे कैसे करेंगे इधर दिखाओ। ये देखिए, अगर 1 नंबर पे बॉन्ड करेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, अगर 2 नंबर पे बॉन्ड करेगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। आप मुझे सोच के बताओ। देखिए कार्बोकैटायन एन कार्बन ए रेडिकल,
दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब दोनों ही ऐसा चाहेगा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो आई विल बी गेट स्टेबिलाइज, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, उतना वो स्टेबिलिटी उसको मिलेगा, ठीक है। और कार्बोकैटायन होगा, कार्बो एनायन होगा, इसका उल्टा कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल आर सेम इलेक्ट्रॉनिकली, दोनों ही क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से स्टेबिलिटी मिलेगा दोनों को। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री रेडिकल, ठीक है ना। 3 डिग्री रेडिकल में देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 2 8 8 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे बने 1 डिग्री रेडिकल। तो हमको सोच के बताओ कौन सा रेडिकल बनेगा। डेफिनेटली 3 डिग्री बनेगा ना भाई, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल हो इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो इसमें तो स्टेबिलिटी मिल नहीं रहा। तो क्या करेगा, इस स्टेप का रिएक्शन में सबसे पहले ए बनेगा। अब ए बना, ए बनने के बाद ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा, तो फोकट में घूमेगा नहीं। देखिए हमारे पास क्या है, HBr तो है भाई, और ठीक है ना। आप देखिए ये पार ऑक्साइड जो है दिया हुआ है, ये कैटालाइट के अमाउंट में देता है। उसके बाद ये तो कैटल बन गया, ये क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन चुरा लेगा, फिर क्या करेगा, फिर ब्रोमीन डॉट को इसको ओपन छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही हाइड्रोजन इधर से ले लिया और इधर होगा हाइड्रोजन एडिशन, अब Br डॉट को फिर से खुला छोड़ दिया। अब Br डॉट क्या करे, फिर एक 2 मिथाइल प्रोपीन को पकड़ेगा, फिर सेम रिएक्शन होगा। और जैसे ही इसको कार्बन डॉट बनेगा, ऐसे डॉट बनेगा, ये फिर से एक H डॉट को पकड़ लेगा, या हाइड्रोजन Br से पकड़ेगा, इधर से हाइड्रोजन ले लेगा, फिर ये Br डॉट छोड़ देगा। उसका मतलब अगर H पैरोक्साइड अगर कैटालिटिक अमाउंट मैंने दे दिया, जैसे रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक HBr खत्म ना हो जाता, ठीक है ना, या फिर सबस्ट्रेट खत्म ना हो जाता, दोनों क्या कंटिन्यूस रिएक्शन चलता रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फंडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरोक्साइड है ये इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं चाहिए, ये चाहिए आपको कैटालिटिक अमाउंट, और ये 60 to 80 डिग्री, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ डाइबेंजल पैरोक्साइड। लेकिन अगर डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पैरोक्साइड हो तो उस केस में आपको टेम्परेचर अलग है, उसमें क्या है 130 डिग्री, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेकिंग का मामला है, जैसे वो ब्रेक करेगा उसके बाद रिएक्शन होता है। चलो ये हो गया। देखिए यहाँ पे तो मैंने देखा है कि 2 स्टेप्स है, ठीक है ना, 2 स्टेप्स है। एक स्टेप और भी है, जैसे आपका ए वाला बॉन्ड है, जैसे फर्स्ट वाला स्टेप में ए वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, उसके बाद ए वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस केस में पैरोक्साइड, देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि ये पैरोक्साइड वाला इफेक्ट जो है ओनली HBr के अंदर दिखाता है, बाकी HCl, HF और HI में दिखाता नहीं है। उस केस में अगर भले ही पैरोक्साइड डाल दो, लेकिन वो होता है मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक रिएक्शन होने से पूरा स्टेप जो है, देखिए यहाँ पे देखिए एक स्टेप ऐसा इसको ब्रेक करना और एक स्टेप हो गया ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इन दोनों में से दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक है, किस केस में, HBr की केस में। तो ये क्या होगा, आसानी से होगा। और बाकी देखिए किसी का ए वाला एक्सोथर्मिक तो इसके एंडोथर्मिक, किसी का ये एक्सोथर्मिक ये एंडोथर्मिक, किसी का ये एंडोथर्मिक तो ये एक्सोथर्मिक, इसीलिए रिएक्शन नहीं होता है, पैरोक्साइड का इफेक्ट इसका ऊपर लागू नहीं होता, ओनली HBr के ऊपर पैरोक्साइड इफेक्ट लागू होता है, क्योंकि दोनों स्टेप ही होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पैरोक्साइड नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को प्रोडक्ट करना चाहो तो क्या होगा। मार्कोनी का रूल्स क्या बोलता है कि नेगेटिव पोर्शन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल फॉलो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पैरोक्साइड है ही नहीं, ठीक है ना। तो मार्कोनी का रूल अगर मान के चले तो यहाँ पे होगा Cl, लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए भाई यहाँ पे Cl ऐड होता है कि नहीं, ये हो गया। सेम केसेस देखिए यहाँ पे भी, ये क्या है H है, यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन मतलब I माइनस कहाँ पे ऐड होना चाहिए, क्योंकि पैरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी का रूल फॉलो करना चाहिए, उसका मतलब यहाँ पे ऐड होना चाहिए था, लेकिन देखिए प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे ऐड है, ठीक है ना। ये क्यों है, क्योंकि अगर मार्कोनी का रूल्स एंटी मार्कोनी रूल्स ये अगर मेमोराइज करेंगे तो ये जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। हमको क्या करना है, उसको जो बैक एंड में जो केमिस्ट्री है वो हमने समझ लिया। बैक एंड का केमिस्ट्री क्या है, आइदर रेडिकल का स्टेबिलिटी या फिर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको मैकेनिज्म करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, HI को तोड़ो H+ और I- पे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है ना, H+ का एडिशन। तो जैसे ही 1 नंबर देखिए, ये 2 नंबर कार्बन, तो 1 नंबर कार्बन पे अगर हाइड्रोजन एडिशन है तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे CH2+ बनेगा। अगर सॉरी यार गला ख़राब है खूब, अगर 2 नंबर पे अगर एडिशन होगा तो फिर क्या होगा, कहाँ पे होगा कार्बोकैटायन, 1 नंबर पे कार्बोकैटायन।
आप सोच के बताओ भाई, अगर ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके एडजस्टेंट एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो फिर ये तो हो जाएगा ना रिपल्शन रिपल्शन ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाएगा। अब रिपल्शन हो तो प्यार नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए वो चाहेगा कि दो पॉजिटिव चार्ज जितना हो दूरी बने दोनों से उतना ही मतलब अच्छा है। तो क्या होगा, तो ये दूरी बनाने के लिए जहाँ पे H+ एडिशन होना चाहिए वहाँ पे होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर पोजीशन में हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अगर H+ एडिशन हो गया तो उसका मतलब आप I- को क्या कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो करेगा कि यहाँ पे ऐड करेगा, तो यही बनेगा आपको प्रोडक्ट। ये होगा आपका एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट विदाउट एडिशन ऑफ पेरोक्साइड। क्लियर। तो ये सेम केस यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी CF3 मतलब क्या, ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इसका क्या है, ये भाई बहुत डेल्टा पॉजिटिव एक कार्बन एकदम हाईली पॉजिटिवली इंड्यूस हो गया, क्योंकि इसका बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया अपने आप। तो ये अगर हाईली पॉजिटिवली इंड्यूस होगा ये कार्बन, तो जाहिर सी बात यह है कि इस कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज होने नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हाईली डिस्टेबलाइज करेगा ना। यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो वो हाईली स्टेबलाइज होता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो बहुत ही डिस्टेबलाइज का हो जाएगा मामला। तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे भी 1 नंबर 2 नंबर अगर अरेंज करोगे तो फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ यहाँ पे भी है, देखिए 1 2 3 नंबर कार्बन, अगर 2 नंबर कार्बन पे H+ हो और 1 नंबर कार्बन पे H+ हो ऐड हो, तो उसके में दोनों डिफरेंट सिनेरियो क्या बनेगा, 1 नंबर पे अगर हाइड्रोजन प्लस ऐड हो जाएगा तो फिर 2 नंबर पे कार्बोकेटन, और ये कार्बोकेटन भाई हाईली डिस्टेबलाइज करेगा तीनों फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये चाहेगा क्या है, पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे बनना ही है तो मैं इस कार्बन पे नहीं बनने दूंगा, मैं कहाँ पे दूंगा, इधर। तो यहाँ पे 2 नंबर पे अटैक करेगा, और फिर आपका भले ही 1 डिग्री कार्बोकेटन फिर भी यही बनाएगा, और ये बनाएगा तो फिर तो भाई और कुछ है ही नहीं। फ्लोरीन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आयोडीन है, आयोडीन नहीं ACl है, Cl है। अब Cl का बस कोई चारा है ही नहीं ना, Cl माइनस क्या करेगा, यही बस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बनाएगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन सो ये क्या हुआ, विदाउट एडिशन ऑफ पेरोक्साइड वी आर गेटिंग एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। क्लियर। सेम थिंग देखिए इधर भी है, ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। यहाँ पे भी सेम थिंग, क्योंकि ये देखिए ये एसिड है ना, ये एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप मतलब ये हो गया आपको, ये हो गया आपको कार्बोनिल कार्बन, और ये हो गया OH ना। हमको क्या पता कि कार्बोनिल कार्बन जो है ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, डेल्टा पॉजिटिव। उस क्या रीज़न है उसका, क्योंकि हमको पता ये है क्योंकि यहाँ पे हम जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं तो कार्बोनिल कार्बन होता है, क्योंकि वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड। भाई यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसलिए इसको डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो डेल्टा पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये कार्बोनिल कार्बन है। अब कार्बोनिल कार्बन जो है उसका जो अल्फा पोजीशन मतलब ए वाला पोजीशन अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हाईली डिस्टेबलाइज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ये बनने नहीं देगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ये बनने नहीं देगा तो फिर जाहिर सी बात कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ऑल्दो इट इज़ 1 डिग्री, इट इज़ 2 डिग्री, बट ये डिग्री वाला जो फंडा है ये हमको याद रखना नहीं है। हमको क्या रखना है, इसका बैक एंड में जो स्टेबिलिटी है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी या फिर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, बैक एंड का जो स्टेबिलिटी है वो हमको याद करना है, वो हमको समझना है। हमको ये डिग्री वाला जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये जितना कम करो उतना बेटर। मतलब फैक्चुअल चीज़ें आपको जो मतलब जिसका कोई लॉजिक है ही नहीं उसको याद करना है। अदरवाइज हमको मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाके उसका बैक एंड का केमिस्ट्री समझना है, क्योंकि उसमें आपको क्या करो, जितना आपको आपका हाथ में ऑप्शन मिलेगा ना उतना आपको सोचने का मतलब थोड़ा सा एरिया देगा। यू कैन थिंक इट, मतलब एक फिर एग्जाम हॉल में एनालिसिस कर करके एक मतलब कंक्लूजन में आप पहुँच सकते हो। जो आपको गेजिंग फैक्टर बनेगा वो थोड़ा सा और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है ना। देखिए अब डबल बॉन्ड अगर इधर है, आप सोच के बताओ ये जो इफेक्ट है उसका ये यहाँ तक है भाई, यहाँ पे ही कम नहीं करेगा। ये 4 नंबर छोड़ दो, ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता ना फिर भी 3 नंबर पे होता, ठीक है। 4 नंबर छोड़ दो, फिर यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटन या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटन, फिर स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है ना ये कार्बोनिल का साइड वाला हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ये जो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था वो तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, स्टेबलाइजिंग वाला फैक्टर, मतलब ये जो मिसाइल ग्रुप है इसकी इंडक्टिव इफेक्ट एंड इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा है, तो इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा। ये मतलब होगा क्या, मार्कोनिको वाला जो फंडा है वो यहाँ पे कर रहा है काम। देखिए एक क्वेश्चन इधर भी एक दिया है, जो भी ये मार्कोनिको जी मार्कोनिको के साथ कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आ गया सामने तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए AgNO3 से रिएक्ट करने के बाद ये जो भाई सिल्वर है ना,
हैलोजन के साथ इसका बहुत लगाव है, बहुत प्यारा है हैलोजन के साथ। कहीं पे भी मिला Cl, Br, आयोडीन, उधर से हल्का से अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो उधर से निकल के AgBr, AgCl, AgI का प्रेसिपिटेट वो दे देगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, वहाँ पे करेगा क्या। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि नो रिएक्शन, लेकिन ये भाई को अगर ऐसा कर दो ना CH3 CH2Br, इसके साथ AgBr दो तो मस्त ये AgBr का प्रेसिपिटेट इधर आएगा। लेकिन इस केस में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो लोन पेयर है ना, 3 पेयर और लोन पेयर, इसके साथ भी एग्रोजनस ऐसा हो सकता है। तो ये जो प्योर सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है आपको, ये दिस बॉन्ड इज नो लॉन्गर प्योर सिंगल बॉन्ड। ये एक्चुअल में कैसे रहता है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br और ऐसा डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो बॉन्ड है ये ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये बॉन्ड जो है ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, मतलब 1.1 बॉन्ड 1.3 बॉन्ड जो भी बोल सकते हो आप। ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। लेकिन Ag+ के पास उतना स्ट्रेंथ है नहीं कि वो मतलब 1.4 1.5 बॉन्ड को ये ब्रेक करे। ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते, इसीलिए इसमें AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा नहीं। लेकिन अगर इथाइल ब्रोमाइड होता तो मस्त AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता आपको और कॉरस्पॉन्डिंग इथेनॉल बना देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा। सिंपल सा बात, यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, 1 डिग्री, फिर से डिग्री में चला जाएंगे दिमाग। जैसे डिग्री में गया भाई, डिग्री में गया मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, हाइड्रोजन H+ ऐड होता है। अगर 1 पे H+ ऐड हुआ, चलो सीधा मैं करेंगे बताता हूँ। 1 पे अगर H+ ऐड हुआ मतलब ऐसा बनेगा आपका 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटन आपको दिमाग में आएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटन हाईली स्टेबल, और यहाँ पे ऐड हुआ तो 1 डिग्री कार्बोकेटन। भाई इससे ज़्यादा स्टेबल तो 3 डिग्री कार्बोकेटन है, मतलब ये बनेगा तो फिर Cl- का क्या कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे एडिशन होगा। मतलब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट ये होता नहीं। क्या प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। उसका रीजन क्या, उसका रीजन ऐसा है, देखिए ये भाई का हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बोकेटन का हाइब्रिडेशन sp3। आप सोच के बताओ, कार्बोकेटन का अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना, आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ठीक है ना। आप बताओ इसका रेक्टेंगल का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन कितना है, जबरदस्त 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन। भाई 30 डिग्री ह्यूज एंगल स्ट्रेन, इतना इस मॉलिक्यूल के पास उतना कैपेबिलिटी है ही नहीं कि 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन को ही झेल पाएगा, ठीक है ना। अब नॉर्मल केस में ये झेल नहीं पाएगा, तो ये ऑलवेज क्या, ससेप्टेबल टू रिलीज योर, क्या बोलते हैं, ससेप्टेबल टू रिलीज दिस एंगल स्ट्रेन। आप बोलोगे इसमें तो सर झेल रहा है, इसमें डेफिनेटली झेल रहा है, इसलिए तो रिएक्शन कर रहा है। जैसे H+ मिलेगा तुरंत वो निकाल देगा एंगल स्ट्रेन। कैसे निकाल देगा, ऐसे बनाएगा। मतलब यहाँ से फिर से अगर ये वाला जो क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये है ना, इसको आपको दिखाना पड़ेगा एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये ऊपर ये हो गया आपका एनर्जी, ठीक है ना, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ता है, और ये होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए सबस्ट्रेट वाला है और ऐसे कार्बोकेटन है, ये ऊपर है, और ये वाला कार्बोकेटन मतलब ये बनेगा आपको यही कहीं। तो इधर से प्रोडक्ट बनना है तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला आपको ऐसे बन जाएगा। मतलब ये जो टेंशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, तो तुरंत ये बना देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए वो एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जा रहा है। कैसे रिलीज हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी 120 डिग्री था, 120 डिग्री क्योंकि sp2 था ना ये भी, लेकिन इस बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये भी आपको 30 डिग्री बॉन्ड एंगल में ये जूझ रहा है, तो ये चाहेगा एंगल फ्री होने के लिए। अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, उसका मतलब देखिए ये होगा आपका sp3। अब sp3 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट। अब बताओ एंगल स्ट्रेन कितना है, लेकिन ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हाइब्रिडेशन के अनुसार ये होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मतलब अभी स्ट्रेन कितना है, अभी एंगल स्ट्रेन होगा आपका 90 डिग्री। तो मतलब जो 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन में था वो अभी 90 डिग्री बना। तो उस केस में क्या होगा, ये एंगल स्ट्रेन के जरिए ये भाई यही कार्बोकेटन बनेगा, और फिर जाके आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन आपको ये वाला इंटरमीडिएट से ये जाएगा नहीं। ये देखिए बिकॉज ऑफ ग्रेटर एंगल, इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। पॉज करें इसको और जूम कर करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं जो बताया उस टाइप का कुछ लिखा होगा केमिस्ट्री की टर्म्स में, ठीक है। लेकिन देखिए केस अगर ऐसा है तो पूरा उल्टा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्लोरिनेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एंगल स्ट्रेन वाला फंडा है नहीं,
ठीक है ना। ये 120, ये भी 120 हो गया, तो भाई कोई इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, आराम से बनेगा ये प्रोडक्ट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बोकेटायन की कोई स्टेबिलिटी है नहीं, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इट विल गेट स्टेबिलाइज्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कंजूगेशन इफेक्ट। हो गया काम, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और है जो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं थोड़ा सा इधर पॉज करो, पॉज करने के बाद आप थोड़ा सा आप खुद कोशिश करो 2-4, फिर नहीं होगा तो मैं नीचे इसका आंसर भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म का कुछ फंडा है नहीं, तो सीधी सीधा दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉज करिएगा और फिर इधर देख लीजिएगा, ये आपको फिर आ जाएगा समझ में। देखिए इसको भी देख लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितना फंडा था वो मैं बता दिया। बाकी लास्ट में शायद ये क्या है, ये कहाँ पे देखा, हाँ ए वाला शायद, दिस इज द लास्ट वन, यस। ये देखिए यहाँ पे अगर एलिन में अगर एसिल एडिशन होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए ये एग्ज़ाम के टाइम में ना आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि वही कार्बोकेटायन 2 डिग्री 3 डिग्री का मैटर है, तो हो सकता है H प्लस। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है ना। अगर फर्स्ट H अगर यहाँ पे लग गया H प्लस, ये H प्लस Cl माइनस है, तो H प्लस यहाँ पे लग गया तो क्या करेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये यहाँ पे जाकर पॉजिटिव चार्ज बना, ये होगा आपका 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज, तो फिर यहाँ पे क्लोरीन लगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ये एक चांस है। और एक चांस ऐसा है कि यहाँ पे H प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, देखिए ये एलिन टाइप का है ना, तो ये फिर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा मतलब फिर और ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैंने क्या बताया कि ACl HBr एडिशन, और मतलब बेस में जाओ, बेस से समझो, ज़्यादा बेस में जाओगे तो आपको क्या आएगा फिर, मतलब फंडामेंटल में क्या आएगा कि बैकएंड में जो काम कर रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पे अटैच कर रहा है, वो क्या है ना, बैकएंड में जो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी है उसको अकॉर्डिंगली काम कर रहा है ना। तो वो उस केस में जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे जैसे ही मतलब मान लीजिए ये सेंटर वाला कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये कार्बोकेटायन तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग और ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फिर यही कार्बोकेटायन बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये कार्बोकेटायन जैसे बन गया Cl माइनस, तो यहाँ पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन वो तो होता नहीं है। क्या प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट होता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न खूब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये मान लीजिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ना एलिन का जो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, ये वाला जो आपका ये वाला जो कार्बन है, हाइड्रोजन पकड़ लीजिए, ये दोनों जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। ये पी ऑर्बिटल का ओवरलैप और इस ओवरलैप का दोनों का बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मतलब आपको जैसे कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन बनने के बाद जो पी ऑर्बिटल फ्री होगा वो इसके साथ इस ऑर्बिटल के साथ रिएक्शन मतलब ओवरलैप करेगा। इस बॉन्ड को फिर से 90 डिग्री रोटेट करना है, सेम प्लेन में आना है, उसके बाद उसको क्या करना है, ओवरलैप करेगा, और उसके बाद रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के लिए कार्बोकेटायन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड काफ़ी नहीं है, सेम प्लेन में भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दोनों पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं है। अब सेम प्लेन में नहीं है इसलिए ये रेजोनेंस होगा नहीं। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो रेजोनेंस में स्टेबिलिटी में नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर उस ऑप्शन में जाएगा नहीं। फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा, वो डिग्री वाला। अब 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे जाके मैं ऐसे ही मतलब जो भी नीट का मैं पेपर सॉल्व करूँगा, तो कुछ भी फंडामेंटल मुझे अगर लगेगा कि ये वाला चीज़ें तुमको बताना है तुम लोगों को, तो आई विल टेक ए पॉज ऑन दैट। उसके बाद बैकएंड में जो थ्योरीज है वो मैं बताऊंगा, और बताने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ चीज़ें आपको चाहिए तुरंत कि अभी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा आपको, तो आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और अदरवाइज तो मैं जैसे ही मतलब मुझे लगा ऐसे मैं करता जाऊँगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।